I want to continue being crazy, living my life the way I dream it to be, not the way others want me to. Hi, good evening. This is your host Indos Nisha and you're listening to Radio Rana Flight of Life and the show is Bookword, where I get very interesting, very different, very unique kind of novels, unique kind of stories for you. And this week, today, I am here with a very different, very interesting story. Veronica Decides to Die by Paulo Coelho. Veronica Decides to Die? Is it something horror? Or is it a murder mystery? No man, it is none of these. It is something related to our lives, related to what we do, how we think and how we act. This is something about how we behave in daily routine, how we present ourselves in front of others, how we want to be और how others make us to be. ये कहानी है हमारी हर एक इंसान की जो हम लोगों के सामने अपने आप को गुड बेटर बेस्ट प्रूव करने के लिए अपने आप को मारते रहते हैं, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपना इम्प्रेशन अपने आप पर खराब करते रहते हैं, लोगों के सामने सेंसिबल और डिसिप्लिन बनने के लिए अपने दिमाग को इनडिसिप्लिन कर देते हैं। खैर, ये कहानी हमारी, आपकी और सबकी है। गाड़ी इतनी तेज चला रहा है, पागल है क्या तू? ओफो, ये तौलिया यहाँ क्यों रख दिया? बिल्कुल दिमाग नहीं है इस लड़के में। क्या 4 दिन से तूने ये काम खत्म नहीं किया? मेंटल है क्या? इस तरह की बातें हम रोज अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। But what does actually mental mean? This book is going to describe you. आज उसने सबके सामने मेरा दिल तोड़ दिया। I'm so hurt. I must die. मेरी लाइफ में कुछ नया है ही नहीं, इतनी monotonous लाइफ है। क्या करूं? It is so boring. It is better to die than live like this. He left me for another girl. I must die. I must not live. What is here to live now? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारी लाइफ में होते हैं। इस तरह के बहुत सारे सिनेरियो से हम गुजरते रहते हैं और हम जीने या मरने के बीच में झूलते रहते हैं। क्या करें? बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं और जब उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं तो एक्चुअली क्या करना चाहिए वो सोच पाते हैं। और ये बुक हमें ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी दिलवाएगी। तो आप आज बने रहिए इस शो के साथ क्योंकि यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। पॉलो कोएल्हो जो कि एक ब्राजीलियन ऑथर है, पोर्चुगीज में लिखते हैं। वो जब छोटे थे तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें मेंटल असाइलम में भर्ती करा दिया था बिकॉज वो काफी फिलोसफिकल थे, काफी डिफरेंट तरह की बातें करते थे। एंड अनलाइक हिज अदर फैमिली मेंबर्स, वो एक राइटर बनना चाहते थे। उनके पेरेंट्स को लगा यार ये तो बड़ी बहकी बातें करता है, इसको मेंटल असाइलम में भर्ती करा देना चाहिए। और उसका रिग्रेट उनके पेरेंट्स को बहुत बाद तक रहा। वो मेंटल असाइलम के ऊपर एक बुक भी लिखना चाहते थे, बट ही थॉट दैट हिज पेरेंट्स विल बी हर्ट, सो ही होल्डेड दिस बुक टिल हिज पेरेंट्स डाइड। आफ्टर हिज पेरेंट्स डाइड, he wrote this novel, Veronica Decides to Die, which is the story of a girl of 24 years who has everything in her life but still she wants to die. Why? For what? What happened to her? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस नॉवल में मिल जाएगा। तो बने रहिए रेडियो राना फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ और सुनते रहिए बुकवर्ड। Stay tuned. For Veronica, today the day has arrived, the day when she wants to kill herself, when she wants to end her life, when she doesn't want to live anymore. She cleaned the room in which she was living. She brushed her teeth and laid down on the bed. She had 4 packs of sleeping pills which she had somehow managed to get. Today she will be consuming all the pills
She doesn't want to crush all the pills and mix in water and take them instantly. She wants to keep on deciding while having the pills. So she thought of consuming the pills one by one so that she could decide. If she doesn't want to kill herself, she could take her decision back halfway. But with each pill, her decision was more firm. She more wanted to kill herself. She wanted to end her life. And within 5 minutes, all the pills are gone. Satisfied by her action, now she doesn't know how much time will it take to lose consciousness. So she wanted to kill her time. So she wanted to do something. So she took the magazine which she has got from the library and started searching for something to read. She had no interest in computer science, but she came across an article written by Paulo Coelho about a computer game. She knew Paulo Coelho from a meeting. As she has met him once, she thought that he is from Harvard, so she can read the article written by him. But the first line of the article took him off guard. She was shocked to read the first line of the article. Though nothing mattered to her now, the geographical condition, the city in which she lived, her country, her parents, her loved ones, none of them mattered to her now. But this headline, the starting of an article, it took her off guard. She was shocked to read. Her friends had told her that everything happens for a reason. Then there must be some reason for this starting, for this tagline. Veronica was passive by nature. For her, nothing was there by chance. Everything had a reason. Everything had a hidden message inside it. Now this tagline, at this point of time, it must be something for a reason. There must be some hidden message. There must be something which this tagline wants to tell me. Else, who starts an article on computer game by this tagline? The article was started with the line, "Where is Slovenia?" Slovenia, the country in which Veronica lived. No one knew that country. No one had started any article with this tagline. Many people don't know where Mount Everest is, but none had ever started an article with this tagline. So there must be a reason. It means most of the people don't know where Slovenia is. No one knows my country. Then I must not live. I live in such a country which people don't even know about. Oh, so what is the point of my existence? I must die now. I must not live. Anyways, I have already taken the pills, so I will die soon. No point of thinking about this. But still, it mattered to her at this point of time. Her country. She started loving her country. The love for her country started developing in her heart. And she felt very bad that people don't even know her country. Then, how will they know me? Obviously, no one knows me. My existence is nothing in this world. Then why should I live? I should not live. वेरोनिका के पास पहले भी रीजंस थे ना जीने के लिए, बट ये एक और रीजन आ गया. अब तो वेरोनिका बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती थी. She was happy that she took the sleeping pills. वेरोनिका पिछले काफी टाइम से मरने के बारे में सोच रही थी. अपनी जिंदगी को एंड करने के बारे में सोच रही थी. मैं रिस्ट काट लूं, पर यहाँ रूम में सारा ब्लड ही ब्लड हो जाएगा. मैं कॉन्वेंट में रहती हूँ और नन्स को बहुत परेशानी होगी. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं कहीं से पिस्तौल ले आऊं, अपने सर पे गोली मार लूं. नहीं, मेरे सर में होल हो जाएगा और जब मेरे पेरेंट्स मुझे देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा. मैं क्या ऊपर छत से कूद जाऊं? नहीं, मेरे मरने के दुख से तो शायद मेरे पेरेंट्स बाहर आ जाएं, बट जब वो मेरे डिसफिगर्ड कॉर्प को देखेंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी. शायद उसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे. मुझे रोमांटिक तरीके से ही मरना चाहिए, जैसे कि फिल्मों में होता है, स्लीपिंग पिल्स खाकर या फिर रिस्ट काटकर. अगर स्लीपिंग पिल्स नहीं मिल पाई तो रिस्ट काटना ही एक ऑप्शन रह जाएगा. ठीक है, नर्स को ये रूम साफ करना पड़ेगा, कर लेंगी, थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगी. पर चाहे हम आज 21वीं सदी में रह रहे हैं, फिर भी भूत से लोग डरते हैं.
ये कमरा कोई रेंट पर नहीं लेगा। सब डरेंगे कि यहाँ पर एक लड़की का खून बहा था। नहीं, मुझे स्लीपिंग पिल्स ही लानी होंगी। और फिर उसने अपने फ्रेंड्स को कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे सोने में प्रॉब्लम होती है। और उसके सब फ्रेंड्स ने एक एक कर उसे 4 पैक ऑफ स्लीपिंग पिल्स ला दिए, जो आज उसने कंज्यूम किए। वेरोनिका खुश थी कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर रही है, बट अभी उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। उन पिल्स का कोई इफेक्ट नहीं था। She thought of writing a letter to the magazine explaining that Slovenia is one of the 5 republics in which Yugoslavia has been divided. Slovenia is not that unimportant. और ये उसका सुसाइड नोट होगा। वो अपनी डेथ का कोई रीजन नहीं लिखेगी। शायद लोग इसी से समझ जाएं कि मैंने अपनी जिंदगी इसलिए खत्म की कि मेरी कंट्री को लोग जानते तक नहीं। कोई ऐसे आर्टिकल लिखता है, डू यू नो वेयर स्लोवेनिया इज? शायद इससे मैं पॉपुलर हो जाऊंगी, मरने के बाद ही सही। तो उसने मैगजीन को एक लेटर भी लिख दिया। अभी भी कुछ चेंजेस नहीं हो रहे थे। वो सोचने लगी कि अब जल्दी ही मैं इस सवाल का जवाब जान जाऊंगी। What is God? Where is God? What does God do? ये सारे क्वेश्चंस जो लोग जानना चाहते हैं, जिनके आंसर्स किसी के पास नहीं होते, जल्दी ही इन सब के आंसर्स मेरे पास होंगे। और फिर वो डिजी फील करने लगी। उसको स्टमक में पेन होने लगा और धीरे धीरे वो पेन इतना ज्यादा हुआ कि वो अनकॉन्शियस हो गई। जब मैगजीन को लेटर लिख रही थी तो जो ह्यूमर क्रिएट हो रहा था उसके दिमाग में, उसने उसे एक सेकंड थॉट दिया, बट नो ऑप्शंस। अब तो वो स्लीपिंग पिल्स ले चुकी थी। नाउ देयर वाज नो वे ऑफ कमिंग बैक। शी कुड नॉट रिवर्स हर डिसीजन। Anyways, she was not dying because she was a depressed woman. She was not happy or sad. No, she was not any of them. She had a family, a loving parents, a boyfriend, a job, everything was normal in her life. But she had 2 reasons to die. Firstly, her life was very normal, very monotonous. Daily routine was very same. And with the old age, everything will become more boring, more monotonous, and she will not be able to change anything. Now, as she knew that her life will be same, no point of living more, she thought that she should end her monotonous life. And the second reason was more philosophical. As she used to read newspapers, she used to read televisions, and everything going around was not good, was not right. But she cannot change any of that. So that gave her a sense of powerlessness. If she cannot change anything, what is the point of living? तो क्या कहना है आपका इस लड़की वेरोनिका के बारे में? पागल साउंड कर रही है? बिल्कुल गॉन केस है। बट खुदा तो हम सबके साथ है कहीं ना कहीं ऐसा कि हम बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं। हाँ, सोचते तो हैं मरने के बारे में, बट कुछ ऐसा करते नहीं, स्लीपिंग पिल्स नहीं लेते, या फिर कुछ ओवर नहीं करते। एक लिमिट में रहकर सोचते हैं और थोड़ी देर बाद मूड चेंज हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है, तो भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले हम मरना चाहते थे और जीने के नए बहाने मिल जाते हैं या फिर ढूंढ लेते हैं। बट जो लोग सुसाइड करते हैं उनके दिमाग में क्या होता होगा? कभी एक पॉइंट ऐसा आता होगा कि मरने की चाह जीने से ज्यादा हो जाए, या जिंदगी बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाए, या वो एक पल जब हम एक डिसीजन ले ले जो गलत हो या सही, बट हाँ डिसीजन तो है। खैर वेरोनिका ने भी ऐसा ही डिसीजन ले लिया है, तो बाकी लोगों के लिए शी इज वेरी स्टूपिड कि सब कुछ होते हुए भी वो जीना नहीं चाहती। और क्या चाहिए भाई, पेरेंट्स भी हैं, प्यार भी करते हैं, बॉयफ्रेंड भी है और जॉब भी है, इसके अलावा किसी को क्या चाहिए हो सकता है। एनीवेज देखते हैं अभी स्लीपिंग पिल्स खाने के बाद वेरोनिका का क्या होने वाला है। खैर आप बने रहिए इस शो के साथ, क्योंकि आगे इस कहानी में बहुत कुछ होने वाला है। After 1 week of unconsciousness,
Veronica finally opened her eyes. Is it heaven? Am I in heaven? But tubes were coming out of her nose and her throat. She tried to move her body and she felt immense pain. Pain in heaven? Where am I? Then she tried to move her body. She tried to take out the tube from her mouth, but she couldn't move her body. Her hands were strapped. Then she listened to one of the females saying, "आ गई नरक में." Hell? Am I in hell? But this place looks like earth. Then she heard another woman saying, "This place is even worse than hell, yaar. This is Vileet." Veronica, Vileet? Am I in Vileet? Vileet. Vileet is the only mental hospital in the town. And Veronica was shocked to know that she is in a mental hospital. Veronica, oh my God, someone might have come in my room and saved me. Someone might have come in my room to get something or some work and saw me lying down. Then he or she would have called the doctor and I am now in a hospital. But why Vileet? विलीट स्लोवेनिया में एक मेंटल हॉस्पिटल था जहां पर अगर आप अपने घर के बड़ों से आर्ग्यूमेंट्स के लिए परेशान हैं तो उनको यहां पर भर्ती करा दीजिए, या फिर आपके बच्चे या आपके घर का कोई फैमिली मेंबर वियर्ड बिहेव कर रहा है तो उसको यहाँ ट्रीटमेंट करा दीजिए। यहाँ पर एडमिशन लेना कुछ मुश्किल नहीं, पैसा सब कुछ करवा देता है। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आप बोल सकते हैं कि मेंटली सिक हूँ और थोड़े दिन विलीट में रहो और छुट्टी। पैसे से कुछ भी हो सकता है। विलीट के बारे में काफी अफवाहें भी थी कि यहाँ पर लोगों को इल ट्रीटमेंट दिया जाता था, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे, एब्यूजेस होते थे। बट क्योंकि प्रेस को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी तो किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। गवर्नमेंट भी इसके लिए इंक्वायरी कर रही थी बट किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। Veronica could listen the story the nurse was telling to another one. My aunt died last week. Why? What happened to her? Actually, she was very depressed types. बहुत सालों तक वो सेडेटिव्स लेती थी, स्मोक करती थी, अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। बट हाँ, बीच में जब उनका हस्बैंड अपनी एक लवर को घर लेकर आया तब वो बहुत एग्रेसिव हो गई थी। रोज चिल्लाती थी, जोर जोर से लड़ती थी, चीजें तोड़ती थी। और उसके बाद जब उनके हस्बैंड ने गिव अप कर दिया, अपनी लवर को वापस छोड़ दिया और वापस मेरी आंट के साथ आ गए और नॉर्मल लाइफ हो गई, तो वो और डिप्रेस हो गई। जैसे अब लाइफ में कुछ है ही नहीं, करने को कुछ नहीं है, ना खुशी है ना दुख है। एंड वन डे शी मैसेज्ड ऑन माय फोन सेइंग गुड बाय एंड शी टुक हर लाइफ। Veronica was listening to all this and was thinking, what am I to do with this? I don't even know her aunt. What should I do? She thought everyone has her or his own pains. No one can understand that, what a person is going through. She wanted to explain all that to that nurse, but she was choking on that tube. The nurse saw her struggling with the tube and then she bent on her. She said, I don't know whether you are regretting that you tried to take your life or you still want to die. I don't know that, but I am here to do my job. And when a patient is agitated, I must give her sedatives. So I am giving you sedatives and you will sleep now. Veronica didn't wanted that, but she could not help. And after that, she went in deep sleep. After that, for few more days, Veronica was struggling between consciousness and unconsciousness. When she was conscious once again, she saw that the tubes were missing. She had needles but no tubes around. Her hands were still strapped. Then she saw the nurse sitting by and was reading a book. She said, "Can you open my arms?" The nurse said no and continued reading her book.
Veronica, oh, I am still alive, and now I will have to go through all that again. I will have to do my job again. I will have to face my parents, my mother, who will cry, who will feel very bad, and who will ask me, why are you behaving so differently? Why can't you be like others? Look at me. Even I am living such a life. I am doing everything for your father, for you, for your sister, for your brother. Ah, do I ever complain? No, I never complain because I am happy for you all. I am happy to see you all happy. I find happiness in your happiness. Why can't you do that? Why can't you be like others? What is bothering you? What is your actual problem? Then I will be convinced. Then I will get married to a man, and me and my husband will be happy. We will make love passionately for the first year of marriage. Then it will diminish. It will reduce to once a week, once a fortnight, or then once a month. Then he will have some another woman. He will take that woman at home, and I will fight with him. I will make scene. I will cry, and then he will apologize. He will leave that another woman, and then I will get pregnant, and we will have kids. After few years, he will come again with another lover of his, and I will not complain this time because I am numb. I have learned to live. I have learned to accept the things. Now, then I will say that I am living for my kids. For the sake of upbringing of my kids, I am living. Otherwise, I have nothing to live. But the fact was that my kids were there because I was living. Otherwise, there would be no kids. But I will do that. I will keep on doing that monotonous job. I will keep on living that empty life. I will keep on living like that. And I will keep on regretting that why am I alive? I should die now. I am healthy. I am young. I can do whatever I want to. I don't want to face the world now. I don't want to go out of this asylum. I just want to take my life. I don't want to live. When she was conscious once again, a nurse asked, "Don't you want to know how are you?" "Veronica, I already know. And it is not about my body which you are seeing. It is about my soul." The nurse tried to continue the conversation, but Veronica pretended asleep. Chalo, finally, Veronica is alive. She's not dead. It might be good for her family, her lovers, but not for her because she still don't want to live. She has no love for life. She is bored of her life and is thinking in a passive way about the upcoming things in her life. She didn't want to face all those monotonous things. Then why can't she change any of that? Why can't she do something crazy? Why can't she live a happy life? Why can't she do whatever she wants to? नहीं, बट हम वो नहीं करते जो हम करना चाहते हैं, बल्कि हम दूसरों के सामने अच्छे बनने की इस जद्दोजहद में अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को मारते रहते हैं। हमें एक लिमिट सेट करनी चाहिए। उस लिमिट के बाद कोई कुछ भी बोले, ना बाबा, नो कॉम्प्रोमाइजेस। उसके आगे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अपनी खुशियाँ भी तो कुछ मैटर करती है। अपने आप को औरों से ऊपर रखना चाहिए, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर प्रोटेक्टिवनेस नहीं, ओवर इगोइस्टिक नहीं, बट इगोइस्टिक होना भी चाहिए, प्रोटेक्टिव भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। अंडर और ओवर वो खराब होता है। खैर, वेरोनिका अलाइव तो है बट मेंटल हॉस्पिटल में है। अब यहाँ क्यों? अब जब वेरोनिका की आँख खुली तो वो एक रूम में थी जो वार्ड जैसा लग रहा था। हाथ में एक नीडल थी, बाकी और कुछ नहीं। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने दो डॉक्टर्स जैसे लगने वाले लोग खड़े थे, एक यंगर और एक ओल्डर।
यंगर डॉक्टर के हाथ में एक नोटपैड था और ओल्डर डॉक्टर ने वेरोनिका से क्वेश्चंस पूछना शुरू किया अबाउट हर नेम, हर मैरिटल स्टेटस, हर एड्रेस एंड सम अदर सिंपल क्वेश्चंस. Veronica knew her name, her marital status, but she didn't remember her address. जैसे कुछ बातें याद थी बट कुछ ब्लैंक्स आ गए थे उसकी मेमोरी में. वो कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी but she could not answer. Then the doctor said, because of the sedatives we gave you, it is difficult for you to remember, but you will soon remember everything. Veronica, how long have I been here? Doctor, 2 weeks. And for first 5 days, you were in intensive care unit. And be thankful that you are still here. Veronica sensed some danger in these words. Then the doctor asked, did you told the nurse that we couldn't look into your soul? Veronica, she didn't remember anything. So, in order to regain her memory, doctor started to ask her many questions like the color of her mother's hair, the famous books in the library, the name of her classmates, her colleagues, and the name of the school she studied in. And as the questionnaire continued, Veronica started having all her memories back. She started recalling everything, and she recalled that she is in a mental hospital, that she wanted to die, she wanted to end her life. Veronica, how much longer will I stay here? The doctors exchanged glances and the younger doctor lowered his eyes as if once that question is answered, her life will change. A new chapter in her life will begin and no one will be able to change it. Older doctor, you can tell her, I have already heard rumors going on in the hospital and it is quite difficult to keep secrets here. Younger doctor, you actually decided your own fate. The coma, which was brought in by the pills you took, has affected your heart irreversibly and it will stop beating after some time. Veronica, what do you mean by it will stop beating? Doctor, when the heart stops beating, I think it is death only. Veronica, death? When will my heart stop beating? Doctor, maybe after 4 or 5 days, at most 6. Veronica could sense that the doctor was enjoying himself. The doctor was enjoying telling her that now she will suffer. Now she will be waiting for her death. Now she will die every day in wait of her death. But Veronica didn't want him to have that pleasure. So she said, so finally, at last I succeeded. Doctor, yeah, actually you succeeded. But रात को वेरोनिका को डर लगने लगा. स्लीपिंग पिल्स लेकर अपनी जान 1 सेकंड में देना अलग बात है, पर डेथ का इंतजार करना वो बिल्कुल अलग बात. वेरोनिका ने अपनी जिंदगी में बहुत चीजों का इंतजार किया है. स्कूल की छुट्टियां होने का, पापा के घर आने का, छुट्टियां खत्म होने का, एग्जाम्स ओवर होने का, जॉब के इंटरव्यू के रिजल्ट का, कभी कॉलेज में जाकर बॉयफ्रेंड से मिलने का. पर डेथ का इंतजार, ऐसा तो कभी नहीं सोचा. किसी के साथ ऐसा नहीं होता यार, मेरे ही साथ क्यों? डेथ तो सबकी सडन होती है, अचानक होती है, पर मुझे पता है कि मैं 5-6 दिन के बाद मरने वाली हूँ. कैसे इस डेथ का इंतजार करूँ? ये पल कैसे बीतेंगे? अब मुझे कैसे भी करके और पिल्स अरेंज करनी होंगी, और अगर मुझे छत से कूदना हुआ तो मैं वो भी करूंगी. मैंने अपने पेरेंट्स को इस पेन से बचाने की बहुत कोशिश की, बट अब मेरे पास कोई चारा नहीं. अगर मुझे अपने सर पर गोली मारकर होल भी करना होगा तो मैं वो भी कर लूंगी, बट मुझे इस जिंदगी को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा. मैं अब और नहीं जी सकती. मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा. कुछ करके मुझे इस जगह से पहले बाहर निकलना होगा.
Veronica got up and looked here and there. She saw a number of women sleeping in other beds, and then she saw a nurse sitting on the far corner of the room and was reading. Veronica dragged herself to her. Veronica could not walk properly as, according to doctors, she hadn't walked for nearly 3 weeks. She wanted to escape from this room. There were bars on the windows and the door of the room seemed to be locked. Veronica whispered to the nurse that she wants to use the toilet. Veronica was afraid of waking other mad women, so she went into the toilet. The toilet was a cubicle with only one door. The nurse stopped reading and was observing Veronica. Veronica, after coming back from the toilet, asked, "Is it a jail?" Nurse, "No, it is a mental hospital." Veronica, "But I am not mental." The nurse laughed. "Every person here says this only." Veronica, "Okay, even if I am mad, then go and sleep on your bed." Veronica insisted. "No, just tell me, what does it mean to be a mad?" Nurse, "Ask the doctor tomorrow, otherwise I will have to give you sedatives whether you want them or not." Veronica obeyed, and when she was going back to her bed, a woman whispered, "Don't you know what it means to be a mad?" Veronica, "Who are you?" Woman, "My name is Zetka. Go to your bed now, and when the nurse will think that you are asleep, crawl to my bed. Then I will tell you what it means to be a mad." जानने के लिए तो आप भी क्यूरियस होंगे, What does actually mental means? पागल? पागल एक्चुअल में होता क्या है? He is actually mad, यार. You look at his paintings. He does a marvelous job. बिल्कुल पागल है. बात करने की अक्ल ही नहीं. लोगों के साथ कैसे बात करना है बिल्कुल समझ नहीं है इसे. What a mad person he is. He acts so well. अच्छा काम करो तो भी पागल, बुरा करो तो भी पागल. ये पागल एक्चुअली है क्या? जैसा कि जेडका ने कहा, वेरोनिका अपने बेड पर चली गई और वेट करने लगी कि कब नर्स वापस अपनी रीडिंग को रिज्यूम करे और वेरोनिका जाने कि एक्चुअली मैड है क्या. उसने इस शब्द को बहुत लोगों को यूज करते हुए देखा था अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में. अच्छा काम किया तो पागल, बुरा किया तो पागल, कुछ बहुत एक्साइटिंग किया तो पागल, कुछ बहुत क्रेजी किया तो पागल. आखिर ये पागल होता क्या है, ये वेरोनिका को जानना था और वो मौका मिलते ही जेडका के पास चली गई. और अब जेडका वेरोनिका को समझाने की कोशिश कर रही है व्हाट इज बीइंग मैड. Everyone who lives in their own world is mad, like schizophrenics, psychopaths, maniacs. I mean the people who want to be different from others are mads. Veronica, like you? But Zetka ignored the remark and continued. Like Columbus, who was saying that there is world on another side of sea, he was also called to be a mad. उसे भी पहले लोगों ने पागल ही कहा था. या एडमंड हिलरी को ही ले लो, जिसने ये कहा था कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचा जा सकता है. सब लोगों ने उसका भी पहले मजाक ही उड़ाया था, उसे भी पागल ही कहा था. वेरोनिका, ये पागल वुमेन भी कुछ सेंस वाली बातें कर रही है. जेडका, मैंने एक बार एक वुमेन को देखा जिसने एक लो कट ड्रेस पहनी हुई थी, बिल्कुल फिल्थी सी, और वो विंटर में, बिल्कुल मिडिल ऑफ विंटर, जबकि 0 से भी नीचे टेम्परेचर था, वॉक कर रही थी स्ट्रीट पे. मैंने जाके उसकी हेल्प करने की कोशिश की, उसे अपनी जैकेट देने की कोशिश की, बट शी वॉज वार्म इनसाइड. उसके अंदर एक अलग तरह की हीट थी, एक वार्मथ उसको पाने की जिसे वो प्यार करती थी. हमारे लिए चाहे विंटर हो, पर उसके लिए समर थी. अब हर किसी को हक है ना अपनी जिंदगी जीने का, जैसे चाहे जीने का या फिर मरने का. क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? वेरोनिका,
This mad woman's words are making some sense. Who knows? Maybe she was the only woman who was walking half naked on the streets. Zetka continued, Let me tell you a story. एक बार एक मैजिशियन था, वो एक किंगडम को खत्म करना चाहता था, तो उसने उस किंगडम के वेल में जहाँ से सब लोग पानी पीते थे उसके ऊपर कुछ जादू कर दिया कि उसका पानी ऐसे हो गया कि जो भी वहाँ से पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। किंगडम के सारे लोगों ने उस वेल में से पानी पी लिया और सब पागल हो गए। किंग और उसकी फैमिली ने वहाँ से पानी नहीं पिया, तो किंग ने अपनी तरफ से सेंसिबल ऑर्डर्स पास करना शुरू किया, बट लोगों को लगा कि ये किंग तो पागल है, ये नहीं कर पाएगा, इससे देश नहीं चलेगा, और सब लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। सबने कहा कि इस किंग को गद्दी से हटा दिया जाए क्योंकि इससे देश नहीं चलेगा। किंग भी परेशान होकर अपना थ्रोन छोड़ने को तैयार हो गया। तब क्वीन ने कहा, लेट्स गो एंड हैव वाटर फ्रॉम द सेम वेल so that we will understand their language. And then the king and his family also had water from that well and they also went mad. अब किंग उनके जैसे ही बातें करने लगा, तो फिर लोगों को लगा कि इसको एक और मौका दिया जा सकता है। Now he is talking some sense. और फिर किंग अपने किंगडम के बाकी लोगों जैसा ही हो गया और वो मरते दम तक उस किंगडम पर राज करता रहा। वेरोनिका ये कहानी सुनकर हंसने लगी, तो जेटका ने कहा, इस कहानी का मेन मोटिव यही है कि अगर हमें पागल नहीं कहलाना तो जैसी जगह पर रह रहे हैं वैसी ही बात करनी पड़ेगी। तुम्हारे हिसाब से बाहर के लोग कैसे हैं? वेरोनिका, दे ऑल ड्रैंक वाटर फ्रॉम द सेम वेल। जेटका, यस एग्जैक्टली। वेरोनिका, यू डोंट सीम मैड एट ऑल। जेटका, बट आई एम। Actually, I was suffering from an acute depression. My body lacked a particular chemical. Though I want my body to get back that chemical and I want to get rid of my acute depression. But I still want to live my life as a mad. मैं अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, वैसे जीना चाहती हूँ जैसे मैं जीना चाहती हूँ। हमेशा दूसरों को खुश करना नहीं चाहती, दूसरों के हिसाब से जीना नहीं चाहती। बहुत हो गया यार, बहुत कर लिया सबको खुश, कुछ नहीं मिलता, अपने आप को ही डिप्रेशन मिल जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक पागल लड़की की तरह रहूं, जीऊं, मस्ती करूं, एंजॉय करूं लाइफ में, और वो सब कुछ करूं जो मैं पहले करना चाहती थी और मैंने नहीं किया। विलीड के बाहर के सब लोग सोचते हैं कि वो नॉर्मल है क्योंकि उन सब ने एक ही कुएं का पानी पिया है, वो सब एक ही तरह से बिहेव करते हैं। जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो मैं भी प्रिटेंड करूंगी कि मैं भी उन्हीं के जैसी हूँ। वेरोनिका, एक्चुअल में पूरी अपनी लाइफ में मैंने यही किया है, मैंने प्रिटेंड किया है कि मैं उन्हीं के जैसी हूँ, और ये प्रिटेंड करते करते मैं परेशान हो गई। मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, बट आई वॉज बोर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग दैट आई एम नॉर्मल। जेटका, बट यहाँ सब कह रहे हैं that you will soon die. Veronica, yes, maybe within 5 or 6 days. Actually, it is very difficult to wait for death. I don't want to do that. Can you help me? Can you help me get more pills so that I could die sooner? Can you help me? Please, you need to. And then the nurse arrived. Nurse, I can give you this injection, or if you will say, I can tell the guards outside to help you. Do you want me to do something like that? Zetka, go and save your energy. If you actually want what you asked me to, go and save your strength. Veronica went back to her own bed and then the nurse gave her the injection. The morning in the mental hospital was very normal for Veronica. She got up, brushed her teeth, took bath and went in the hall for breakfast. And breakfast, it was also good. विलीड की रेपुटेशन फूड के मामले में बाहर भी अच्छी थी और वो इसको जस्टिफाई करता था। ब्रेकफास्ट एक्चुअल में अच्छा था और यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था जैसा हम मूवीज में देखते हैं या सुनते हैं कि कहीं कोई पागल चिल्ला रहा है,
कहीं कोई रोए जा रहा है या फिर कोई हंसता जा रहा है। नहीं, it was very normal. Everyone was calm and everyone was concerned about himself only. No one wanted to interfere with strangers. और वेरोनिका ये सब देखकर हैरान थी। तभी एक नर्स ने कहा, It's time to go out and take sun. Veronica, I'm not here to preserve my life. In fact, I'm here to lose it. Nurse, you must go out and take sun. Veronica, it's not we who are mad. Actually, you are mad. It's below 0 degrees and the garden is covered with snow. Where is sun? Nurse, still you must go out. There is light and light helps the patient to calm them. अगर यहाँ की विंटर इतनी लंबी ना होती तो हमें करने के लिए बहुत कम काम होता। Veronica thought, no point arguing with her. It's better to go out. And Veronica went out into the garden. वेरोनिका गार्डन में वॉक करने लगी और सोचने लगी कि यहाँ से एस्केप करने का क्या तरीका हो सकता है। वॉल्स तो बहुत ऊंची हैं। इतनी ऊंची दीवार से कूदना बहुत मुश्किल है। गेट पर 2 गार्ड थे जो हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे थे। पहले उनके आईडी प्रूफ्स या पेपर्स चेक करते थे, तभी अंदर आने देते थे। और यहाँ से निकलना, बाप रे, ये भी बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ तरीका तो सोचना ही होगा। और तभी वेरोनिका के सामने एक 35 इयर्स की बिल्कुल नॉर्मल लगने वाली लड़की आ गई। हाय, आई एम ज़ेडका। वेरोनिका, ओह हाय, लास्ट नाइट आई कुडंट सी योर फेस। ज़ेडका, या आई नो। वाज द इंजेक्शन टू बैड? वेरोनिका, नो आई एम ऑल राइट। ज़ेडका, ये जो सेडेटिव्स होते हैं ये धीरे धीरे अपना असर खो देते हैं या कम हो जाता है, तो धीरे धीरे तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। वेरोनिका, नो इट्स ओके। Zedka, about our last night conversation, do you still remember what you asked me? Veronica, obviously I do. Zedka, चलो वॉक करते हैं। और फिर ये दोनों गार्डन में वॉक करने लगे। Zedka, it's a lovely day. चाहे अभी सन नहीं है, बट सच बोलूं तो मुझे ऐसे डेज में डिप्रेशन नहीं होता। जब सन होता है, सब लोग बाहर जाते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, तब मुझे डिप्रेशन होता है। तब मुझे बुरा लगता है कि यार मैं ये सब कुछ क्यों नहीं कर पा रही। वेरोनिका, व्हाट अबाउट आवर लास्ट नाइट्स कन्वर्सेशन? ज़ेडका, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ऐसे लोग हैं जो ठीक हैं, मेंटल नहीं है, बाहर जा सकते हैं, बट स्टिल दे डोंट वांट टू गो आउट। ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत ही 5 स्टार प्रॉपर्टी है, बट यहाँ आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो बिना किसी रोक टोक के। बाहर जाकर आपको लोगों के हिसाब से जीना पड़ता है या आप अपनी मर्जी से जी सकते हो, जिसके साथ जैसा चाहे बिहेव कर सकते हो, किसी को कुछ भी बोल सकते हो। हमेशा अच्छे बने रहने की कोई टेंशन नहीं, हमेशा अच्छा बिहेव करने की कोई टेंशन नहीं। आप पागलों की तरह बिहेव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते जो आप चाहते हो। तो कुछ लोग हैं जो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट के खर्चे पर यहाँ रह रहे हैं। जब यहाँ कोई इन्विजिलेशन होती है, कोई ऑफिसर्स आते हैं, तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, एक्टिंग कर लेते हैं और फिर आराम से यहाँ पर रहते हैं। वेरोनिका, क्या वो मेरे लिए स्लीपिंग पिल्स ला सकते हैं? ज़ेडका, यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम। ये अपने ग्रुप को फ्रेटर्निटी कहते हैं। हाँ, वो जो सामने लेडी खड़ी है व्हाइट हेयर में, मैरी है उसका नाम, वो चाहे तो तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। और वेरोनिका तभी उसके पास जाने लगी। ज़ेडका, रुको अभी मत जाओ। नाउ शी इज हैविंग फन विद हर फ्रेंड्स, और अगर अभी तुम वहां जाओगी तो वो अपना फन छोड़कर तो तुम्हें एंटरटेन नहीं करेगी। और यहाँ पर किसी के साथ अच्छा बिहेव करने की कोई जबरदस्ती भी नहीं है। अगर वो तुमसे नाराज हो गई तो फिर तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। पागलों में पहला इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। वेरोनिका हंसने लगी। कैसे ये लोग अपने आप को मैड एक्सेप्ट करते हैं, पर वेरोनिका एंजॉय कर रही थी एक रूटीन से अलग हटकर लाइफ। रोज सुबह उठना, ऑफिस जाना, बॉयफ्रेंड से मिलना, उसके साथ बेड पर जाना, रात को घर आकर सो जाना या फिर कभी कभी पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। हमेशा एक मोनोटोनस सी लाइफ जीते रहने से ये लाइफ
बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी वेरोनिका को। शी वॉज एक्सपीरियंसिंग समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। यहाँ पर आपको कुछ प्रिटेंड नहीं करना लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए। तभी वेरोनिका के हार्ट में पेन जैसा हुआ और उसे डॉक्टर की बात याद आ गई। उसने जेडका को कहा, I want to walk alone for some time। ऐसे वेरोनिका भी तो मैड है, उसे भी तो किसी को प्लीज करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर जेडका को ये बोलकर वो अकेले वॉक करने लगी। सोचने लगी, दीवारों को, बर्फ को, पहाड़ों को देखने लगी, जैसे जीने की एक तमन्ना उसके अंदर फिर से जाग गई। और उसने फटाफट उस सोच को हटाया, नहीं नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी कहीं से ये पिल्स लेनी होंगी। चाहे यहाँ पर रहकर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पागलों जैसे भी, पर मुझे ये भी नहीं पता कि मैं करना क्या चाहती हूँ। कभी आज तक मैंने कुछ क्रेजी नहीं किया, मैं करूँ भी तो क्या। और फिर तभी सब लोग वापस अंदर चले गए। अंदर वो फ्रेटर्निटी वाला ग्रुप बातें कर रहा था, कुछ डिस्कशंस कर रहा था। वेरोनिका ने सोचा कि क्यों ना पता लगाया जाए कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। वो वहां पर वॉक करने लगी। जैसे ही ग्रुप के पास पहुंचती, सब लोग चुप हो जाते। जैसे ही आगे जाती, बात करने लगते। फिर वेरोनिका थोड़ी देर वहीं पर खड़ी हो गई तो उस ग्रुप के एक ओल्ड मेंबर ने पूछा, What are you doing here? Veronica, I'm just passing by. Then all the members started talking to themselves. She's just passing by. She's just passing by. You know, she's standing here, but she's saying that she's just passing by. और फिर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी नर्स वहां आ गई। क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? और उस ग्रुप के उसी ओल्ड मैन ने कहा, शी इज जस्ट पासिंग बाय। और सब लोग और जोर जोर से हंसने लगे। वेरोनिका को इससे बहुत दुख हुआ। She felt like crying और वो बाहर की तरफ चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे बड़ा बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुई उसे। कैसे वो कितनी कमजोर बन गई है। अब उसके अंदर दुनिया को फेस करने की जैसे ताकत ही नहीं बची। वेरोनिका ने हमेशा कूल और काम रहना सीखा था, इन सिचुएशंस को कामली हैंडल करना सीखा था। पर आज नहीं, आज उसे बहुत गुस्सा आया, बहुत इंसल्टेड फील हुआ। ऐसे मन किया कि उनको पकड़ पकड़ के मारे बहुत ज्यादा। क्या ये जो स्लीपिंग पिल्स उसने ली, उनकी वजह से वो इतनी फ्रेजाइल हो गई है, इतनी वीक हो गई है कि वो सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रही। अब चाहे कुछ भी हो, इन लोगों की हेल्प तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। एक दिन तो निकल गया, 4-5 दिन और, वो भी कैसे ही निकाल लूंगी, बट इन लोगों की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लूंगी। वेरोनिका, मैं भी क्या पागलों वाली बातें कर रही हूँ। इन लोगों को, जिनको मैं जानती भी नहीं, आज उनके रिमार्क्स मेरे लिए क्या मैटर करते हैं। और वैसे भी 4-5 दिनों में तो मैं मरने ही वाली हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई कुछ भी कहे। क्यों मैं अपने इस प्रीशियस टाइम में इन सारी स्टूपिड चीजों को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। क्या इन लोगों को पता है कि मरना क्या होता है, मरने के लिए इंतजार करना क्या होता है? इन लोगों को तो बस दूसरों का मजाक उड़ाना आता है। इनको क्या पता मैं किस सब से गुजर रही हूँ। मैं जो आज तक कभी इतने गुस्से में नहीं आई, उसे इन लोगों ने, इन पागल लोगों ने इतना गुस्सा दिला दिया कि मुझे बदला लेने का मन कर रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि कुछ करूँ, तो क्यों ना शुरुआत यहीं से हो। और फिर वेरोनिका अंदर गई और उस ओल्ड मैन को खींच के एक चांटा मारा। Waiting for the holidays to come was a different thing. Waiting for the exams was a different thing. But waiting for that, it was totally a different experience for her. She actually was a very simple girl
who, in order to impress her parents, in order to satisfy her parents, in order to satisfy her teachers, her colleagues, her officers, she always killed herself. She always killed her needs, her priorities and made others her priorities. अपनी इच्छाएं, अपनी फीलिंग्स, अपनी जरूरतों को मारकर ये वेरोनिका दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती रहती थी, अच्छा बनने की कोशिश करती रहती थी और इस अच्छा बनने की भागदौड़ में वो जीना ही भूल गई थी, अपनी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाना ही भूल गई थी, जैसे ये उसे आता ही नहीं था। और फिर एक दिन जिंदगी से शिकायत हो गई कि जिंदगी बहुत बोरिंग है, बहुत मोनोटोनस है। अरे भाई, आप जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाओगे नहीं तो बनेगी कैसे? बट वेरोनिका ने ऐसे सोचना ही छोड़ दिया था, जैसे उसको लगता था कि जिंदगी यही है, जीते जाओ जीते जाओ जीते जाओ। बट अब और नहीं, इतनी मोनोटोनस लाइफ यार कब तक कोई जिएगा? लाइफ में कुछ तो ड्राम होना चाहिए, कुछ तो क्रेजी होना चाहिए। और क्रेजी शब्द से वेरोनिका बहुत दूर थी और उसका सही मतलब उससे यहाँ इस मेंटल हॉस्पिटल में पता चला। यहाँ पर वो अलग अलग लोगों से मिली, उनकी कहानियाँ भी सुनी और लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से उसने जीने का मतलब सीखना शुरू किया। पागल क्या होता है? पागल वो इंसान होता है जो कुछ हटकर काम करता है। अगर आप लीक से हटकर चलते हो तो लोग आपको पागल कहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। Doing anything crazy is said to be mad। चाहे आप क्रिकेट में ऑफ द वे जाकर 300 स्कोर करो तब भी यही कहते हैं, क्या पागल आदमी है यार, क्या खेल रहा है। और अगर आप कुछ खराब करो, किसी के ऊपर शाउट करो, किसी से लड़ाई करो तो भी यही कहते हैं, बिल्कुल पागल दिमाग का आदमी है, इससे बात करना बेकार है। अगर आप कुछ बहुत ही ऑसम करो, यार क्या पेंटिंग बनाई है, बिल्कुल पागल आदमी है ये तो। या फिर आप किसी की फील को हर्ट करो, बिल्कुल पागल है, इससे बात करने की तमीज ही नहीं। पागल का असली मतलब वेरोनिका ने इसी पागल खाने में जाकर सीखा। क्रेजी होने का क्या मजा है वो उसे यहाँ समझ आ रहा है। अब वो जीना चाहती है बट उसके पास परहैप्स ऐसे कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि उसका हार्ट वीक हो चुका है और वो इन एनी वे मरने ही वाली है। अब जीने के बारे में जब वो सोचना शुरू करना चाहती है तो वो ये कर नहीं सकती, तो उसे सोचा क्यों ना पहले जैसी मोनोटोनस लाइफ ही जिए। तो अब वो यहाँ इस मेंटल हॉस्पिटल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है और अपनी लाइफ को जितना हो सके मोनोटोनस बना रही है। हाँ, पर उसने एक क्रेजी काम जरूर किया यहाँ पर। एक इंसान को जिसने उसका मजाक उड़ाया, उसकी इंसल्ट की, उसे एक खिंचा कर चांटा मारा, जो वेरोनिका ने पहले कभी नहीं किया था। She regretted that slap a lot, not because she was afraid of that man, but it was the first crazy thing she ever did, and that gave her a lot of satisfaction. That gave her a feeling of living again, but she didn't want that feeling, so she regretted that slap, and she was now following the monotonous routine of the mental hospital, and she was avoiding everything, everyone. अब ये वेरोनिका आगे क्या करने वाली है? उसकी लाइफ के जो बचे हुए दिन हैं, इनको कैसे बिताने वाली है? ऐसे ही बोर होकर या कुछ और क्रेजी करेगी? उस ग्रुप को जिसे जेड का फ्रेटर्निटी कहती थी, उस ग्रुप के मेंबर को स्लैप करने के बाद वेरोनिका वापस उसी आदमी के पास गई। Aren't you going to say anything? Man, no, because you will not be bothering us for long. You will not be with us for long. Veronica felt very hurt, very bad, and she ran off to her ward. She cried and felt very, very bad. She felt very low. Why? What happened? Why is she so sad now? She wanted to die, and she will die in few days. Then what is there to cry? But Veronica was upset. Veronica was very hurt. Maybe she don't want to die now, but
there is no maybe for her, because what she did can never be reversed, and she will not be able to live anymore. Now she cannot do anything to reverse her decisions. Now she will have to die. और अब वेरोनिका ने हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना शुरू किया, उसकी मोनोटोनस रूटीन को फॉलो करना शुरू किया। सुबह उठना, नहाना, बाल कोम करना, ब्रेकफास्ट करना, वॉक करने जाना, वापस आकर लंच करना, शाम को टीवी देखना, डिनर करना और सो जाना। बस अब वेरोनिका का यही रूटीन था। उसने सबको अवॉइड करना शुरू किया, सबसे दूर हटना शुरू किया। इस तरह मेंटल हॉस्पिटल में वेरोनिका के दिन आसानी से बीत रहे थे। सेम रूटीन फॉलो करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे यही करने की आदत थी। अब 2-3 दिन के बाद वेरोनिका को अपने बाल कोम नहीं करने होंगे, टीथ ब्रश नहीं करने होंगे, खाना नहीं खाना होगा, बाहर वॉक नहीं करना होगा, सब खत्म हो जाएगा। हर रोज रात को जहाँ सबको पिल्स दी जाती थी, दवाइयाँ दी जाती थी, वहाँ वेरोनिका को इंजेक्शन लेना होता था। वेरोनिका ने कभी कंप्लेन नहीं किया, पर एक दिन नर्स से पूछा, "Why do you give me so much of sedatives? I have no problem sleeping." Nurse, "This injection is not a sedative. It is a medication for your heart." And Veronica took the injection obediently. धीरे धीरे वेरोनिका को फील होने लगा कि उसका हार्ट वीक हो रहा है। अब उसे भूख नहीं लगती, कुछ खाने को मन नहीं करता, सांस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट में कभी कभी पेन भी होता है। वेरोनिका जब बैठती तो सोचती कि मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में सारे दिन इतने मोनोटोनस क्यों थे, क्योंकि शायद मैं चाहती ही ऐसा थी, मैंने कभी कोशिश क्यों नहीं की। वो रिग्रेट करती थी। हमारे साथ, मेरे साथ, आप लोगों के साथ, हम सबके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ को बोरिंग बनाते जाते हैं, जीते जाते हैं, जिंदगी में कुछ नयापन लाने की कोशिश नहीं करते। और फिर कोई पूछता है, लाइफ कैसी चल रही है? बहुत बोरिंग यार, इतनी स्टूपिड, इतनी मोनोटोनस लाइफ है कि जीने का मन ही नहीं करता। अरे बाबा, लाइफ मोनोटोनस इसलिए है क्योंकि हम उसे बनाते हैं। अगर हम चाहें तो इस लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हमारे अपने हाथ में है ये, कोई भी हमारी लाइफ को स्पॉइल नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहें। जब हम एक चीज करते हैं, अपनी लाइफ को बोरिंग बनाते हैं, तब हमें रियलाइज नहीं होता, लेटर ऑन हमें रियलाइज होता है। हमें उसी टाइम रियलाइज करना चाहिए जब उसकी जरूरत हो। अपनी लाइफ को आप तो बिल्कुल भी बोर मत बनने देना, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहना, जैसा कि वेरोनिका ने नहीं किया, तो आपको कभी भी वेरोनिका वाली सिचुएशन में आना नहीं पड़ेगा। हमें अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रेजी करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अच्छा, आप तो आज मुझे ये प्रॉमिस जरूर कीजिए कि आप अपनी लाइफ में आज कोई क्रेजी काम जरूर करोगे, ऑफ द वे जाके, जो आप हमेशा नहीं करते। मेरे लिए तो करोगे, प्रॉमिस करो। मैं भी करूंगी, और कल अगली बार आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्रेजी किया, क्या नया किया, क्या डिफरेंट किया। एक बात बताऊं, कभी कभी पागलों वाली हरकतें करने में मजा बहुत आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, बाकी लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं स्टूपिड हरकतों में। हमेशा डिसिप्लिन बने रहना, डिसेंट बने रहना, यार बहुत बोरिंग होता है। क्या हमेशा अच्छे बनने की कोशिश? कभी कभी मस्ती भी करनी चाहिए, छेड़छाड़ भी करनी चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए। तो बोलो, करते हो ना प्रॉमिस? करोगे ना कुछ क्रेजी काम? और क्या क्रेजी काम किया, ये मुझे हमारी स्काइप आईडी RADIOUDAAN पे बताओगे। पक्का? प्रॉमिस? मुझे जरूर बताना कि आपने क्या क्रेजी किया। मैं अपने शो में अगली बार लेकर आऊंगी। अपनी लाइफ को मोनोटोनस और बोरिंग बिल्कुल मत बनने देना। खैर, वेरोनिका अब ये जो रूटीन्स फॉलो कर रही थी, दिन आराम से गुजर रहे थे, जल्दी गुजर रहे थे। आज फिर से ये लोग बाहर गार्डन में वॉक कर रहे थे, तभी एक नर्स आई और उसने जेडका को कहा,
it's your treatment day. Zetka, okay, I will come with you. Veronica, do you want to come? Veronica, for what? Zetka, I want you to see me while my treatment is going on. Nurse, it is nothing like a show off. You cannot call her. Zetka, but she is dying. She hasn't seen much. Let her come, please sister, let her come. Sister was quiet because she didn't had anything to say. She knew that Veronica will die in 2 or 3 days. Then it's no point stopping her. Veronica, okay, I will come. And Veronica came with Zetka to the treatment room. Veronica, what type of treatment is it? Zetka, it is an old treatment from 60s, but the doctors think that it might hasten my recovery. Veronica, you said that you were depressed. Isn't the medication enough to replace the chemical you are lacking? Zetka, come and watch. Veronica was reluctant at first as she was going to discover new things. At this stage of her life, now she doesn't need to know anything more. But still, she wanted to do it. She wanted to know what Zetka is going through. So, she was there with her in the treatment room. वेरोनिका ने देखा कि उस हंसती हुई लड़की को बेड के साथ स्ट्रैप कर दिया गया, बांध दिया गया। वहाँ पर एक मेल नर्स था। Zetka, to the male nurse, tell her what is going on, otherwise she'll be afraid. The male nurse showed the injection to Veronica. ये इंसुलिन का इंजेक्शन है जो डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है, पर अगर की ओवरडोज किसी को दी जाए तो वो एक कोमा की स्टेट में चला जाता है। और फिर उस मेल नर्स ने जेटका के लेफ्ट फुट में वो इंजेक्शन लगा दिया और वेरोनिका को कहा कि अब ये एक कोमा की स्टेज में चली जाएगी। डरना मत अगर उसकी आंखें कुछ अजीब सी लगे या फिर वो इस ट्रीटमेंट के बाद तुम्हें पहचान ना पाए। वेरोनिका, व्हाट आर यू डूइंग? इन जनरल पीपल स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ कोमा एंड यू आर डूइंग दैट, यू आर मेकिंग हर गो इनटू कोमा। मेल नर्स, generally people try to live their lives happily, they don't try to end their lives. जब आप कोमा में होते हो तो आपके बॉडी के सारे पार्ट्स एक स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं। आपका कोई पार्ट भी मूव नहीं कर सकता। जब वेरोनिका नर्स से बात कर रही थी, उसने जेटका की तरफ देखा तो उसकी आईज डल हो रही थी और धीरे धीरे उसकी आईज एक पॉइंट पर फिक्स हो गई। उसके मुंह में से झाग निकलने लगे। वेरोनिका ये देखकर डर गई, घबरा गई। वेरोनिका, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नर्स, कोई फायदा नहीं है, वो अब तुम्हें सुन नहीं सकती। वेरोनिका, ये क्या किया तुमने? मैं तुम लोगों की कंप्लेंट करूंगी, मैं ऊपर तक जाऊंगी, ह्यूमन राइट एसोसिएशंस में जाऊंगी, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। एक हंसती खेलती लड़की का ये क्या हाल बना दिया तुमने। नर्स, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। वेरोनिका, नहीं, तुमने ये बहुत गलत किया, दिस इज नॉट राइट, तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। नर्स, ठीक है, तुम मेंटल हॉस्पिटल में हो, बट स्टिल यू विल हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू कैन नॉट शाउट लाइक दिस। बट वेरोनिका, शी हैड नथिंग टू लूज, सो शी केप्ट ऑन शाउटिंग, शी केप्ट ऑन थ्रेटनिंग द नर्स। बट इस सब का कोई फायदा नहीं था। जेटका तो एक स्टेट ऑफ कोमा में चली गई थी, जहाँ से वो वेरोनिका को नहीं सुन सकती थी। इस तरह के ट्रीटमेंट्स मेंटल हॉस्पिटल्स में बैन थे। कोई भी अपने हॉस्पिटल्स में इस तरह के ट्रीटमेंट्स नहीं दे सकता था, पर विलीट में ये सब ट्रीटमेंट्स दिए जाते थे जो कि देने नहीं चाहिए, जिनका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है आपकी बॉडी पर। जेटका ने वहाँ के डॉक्टर को किसी और से बात करते हुए भी सुना कि इन पागलों के राइट्स के बारे में किसको चिंता है, क्या फर्क पड़ता है अगर ये मर भी जाएं, हमें अपने ट्रीटमेंट्स तो इन पर ट्राई करते ही रहने चाहिए। तो जेटका को ये बात बुरी लगी, बट ये ट्रीटमेंट इतना बुरा भी नहीं था जेटका के लिए। वेरोनिका नहीं जानती थी कि जेटका के सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस परफेक्टली काम कर रहे हैं। ओनली हर सोल वाज फ्लाइंग। शी वाज इन अ स्टेट ऑफ प्रोफाउंड पीस, अ स्टेट ऑफ मेंटल पीस। यहाँ पर वो एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस करती थी। वो अपनी सोल को लेकर कहीं भी जा सकती थी, कहीं भी कोने कोने में जा सकती थी, एक अलग ही पीस को फील कर सकती थी, एक अलग ही चीज महसूस कर सकती थी।
इस ट्रीटमेंट में जेटका को मेंटली बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। उसने इस ट्रीटमेंट के बारे में बहुत पढ़ा था और समझा भी था। अब वो इस ट्रीटमेंट को एंजॉय करती थी। इस ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग वो अपनी सोल को वहां ले जाती थी जहां उसे ले जाना चाहती थी। कभी पहाड़ों में, कभी नदी के पास, कभी ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पास। और जेटका ये सब महसूस करते करते बहुत अच्छा फील करती थी। जेटका को पता था कि शायद ये उसका लास्ट ट्रीटमेंट है, इसलिए वो हर हाइट तक जाना चाहती थी। वो सब कुछ महसूस करना चाहती थी। उसने डॉक्टर को किसी को बोलते हुए सुना था कि जेटका अब ठीक हो चुकी है और शायद ये उसका लास्ट ट्रीटमेंट होगा। जेटका अब विलीड से बाहर जाने से भी डरती थी। बाहर जाकर फिर से वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, वही डेली के काम करना, अपनी डेली ब्रेड को अर्न करने के लिए स्ट्रगल करना, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छा बने रहना, इन सब से उसे डर लगता था। यहाँ पागल खाने के तौर तरीकों की जैसे उसे आदत हो गई थी, जहाँ आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कैसे भी बिहेव कर सकते हो, आपको हमेशा अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना। तो एक बार जेटका ने ये भी सोचा कि वो ठीक होने के बाद फ्रेटर्निटी ग्रुप को ज्वाइन कर लेगी, बट नहीं, जेटका बाहर जाना चाहती थी और बाहर के तौर तरीकों के साथ वापस जिंदगी अपनी रिज्यूम करना चाहती थी। उसे किसी ने कहा था कि आप अच्छे से बाहर रह सकते हो, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो, बस आपको अपने पागलपन को एक हद तक कंट्रोल करना होगा, उसे एक लिमिट तक ही ले जाना होगा। आप हंस भी सकते हो, रो भी सकते हो, मजाक भी कर सकते हो, चिल्ला भी सकते हो, बट हर चीज की एक लिमिट है। उस लिमिट के बाहर आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उस लिमिट के बाहर आपको पागल करार कर दिया जाता है। तो आपको हर एक इमोशन महसूस करने का, दिखाने का पूरा हक है, बट एक लिमिट में। और जेटका ये सब करना चाहती थी, वो विलीड से बाहर जाना चाहती थी। जल्दी ही जेटका अब वापस अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ होगी, अपनी पहले वाली लाइफ को रिज्यूम करेगी। दो लेजब लजाना जैसे छोटे से शहर में काम वापस पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी खबरें बहुत जल्दी फैलती हैं। ये लड़की पागल खाने से आई है, ना बाबा ना, हम तो इसे नौकरी नहीं देंगे। बट उसका हस्बैंड अच्छा खासा कमाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो घर पर रहकर अपने बच्चों को भी संभाल सकती है, अपने हस्बैंड का ख्याल रख सकती है, इस तरह अपने ऑर्गन्स को एक स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकती है, अपनी सोल को फ्लाई करवा सकती है, हाइट्स को रीच कर सकती है बिना इंजेक्शन लिए। जेटका सब कुछ कर सकती है। जेटका वो सब कुछ करना चाहती है, नहीं करना चाहती तो बस वो डिप्रेशन जिसने उसे यहाँ विलीड तक पहुंचाया, वो वापस नहीं लाना चाहती। आखिर ये डिप्रेशन है क्या? आजकल हर दूसरा इंसान कहता है, यार मुझे डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है, I am very depressed, I don't feel like doing anything. But what is actually this depression? डॉक्टर्स के हिसाब से हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस होता है, एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, और अगर ये केमिकल हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमें भूख नहीं लगती, काम में मन नहीं लगता, कुछ करने को मन नहीं करता, अजीब अजीब सा फील होता है, लो सा फील होता है। और जब ये केमिकल बिल्कुल ही बॉडी में खत्म हो जाता है तो हम डिसीजंस नहीं ले पाते, बहुत डिप्रेस, बहुत लो फील करते हैं, कोई काम नहीं कर पाते, किसी चीज में मन नहीं लगता, हर चीज ग्लूमी लगती है, हर चीज डिप्रेसिंग लगती है, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, हम लाइफ में किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, भीड़ में भी अकेला लगता है, अपने प्यार करने वालों के बीच में भी प्यार की कमी लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और धीरे धीरे हम एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं कि हम बस अपने आप में ही सिमट कर रह जाते हैं, हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। और फिर ऐसी स्टेट आ जाती है कि हम सुसाइड कर लेते हैं, हम अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जीने की कोई चाह ही नहीं बची होती। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी लाइफ में अगर कोई मेजर चेंज होता है, उस वजह से हमें डिप्रेशन होता है। कोई हमें प्यार करने वाला हमें छोड़कर चला जाए, या हम अपना घर बदल के किसी नई जगह पर चले जाएं, या फिर हमारी जॉब चेंज हो जहाँ पर हमें अच्छा ना लगे, अच्छी ना लगे जॉब, मेंटल सेटिस्फैक्शन ना मिले, इन सब चीजों से हम एक डिप्रेशन की स्टेट में चले जाते हैं।
और कुछ डॉक्टर्स का तो यहाँ तक कहना है कि लैक ऑफ सनलाइट कैन कॉज डिप्रेशन। पर यहाँ जेडका के केस में डिप्रेशन का क्या कारण था? जेडका को इस छोटी सी एज में, एक हंसती खेलती एज में जहाँ पर हमें जीना चाहिए, जीने का मन करता है, वहाँ इतना डिप्रेशन हो गया कि उसे विलीट में आकर एडमिट होना पड़ा। इस सब का क्या कारण था? जेडका के डिप्रेशन का आम कारण था प्यार। वो अपनी जवानी में एक लड़के को प्यार करती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती थी, पर उसे वो प्यार उस लड़के से वापस नहीं मिल रहा था। वो उसे प्यार दिखाता भी था और नहीं भी, इम्पोर्टेंस देता भी था और नहीं भी। खैर, वो लजब जाना छोड़कर यूएस से चला गया और वहाँ किसी और के साथ जाकर शादी कर ली। पर जेडका ये सब कुछ सह नहीं पाई और उसके पीछे पीछे यूएस से चली गई। वहाँ एक चीप होटल में रही और उसके साथ उसकी मिस्ट्रेस बनकर रहने को भी तैयार हो गई। वो उसे बेइंतहा प्यार करती थी, उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और वहाँ रहकर अपनी इंसल्ट करवाई, उसकी मिस्ट्रेस बनकर रही। वो कभी आता था, कभी नहीं आता था, कभी उसके साथ बहुत रूड बिहेव करता था, कभी थोड़ा सा प्यार दे देता था। और एक दिन जेडका इस सबसे फेड अप हो गई और वापस लजब लजाना आ गई। अब यहाँ आकर वो डिप्रेस रहने लगी, गुमसुम रहने लगी, किसी से बात करने को मन नहीं करता था, अपने आप में रहती थी। उसने जॉब करना शुरू किया, धीरे धीरे अपने उस डिप्रेशन से, अपने उस प्यार के इफेक्ट से बाहर आने लगी। और यहाँ जॉब में उससे एक लड़का मिला, वो लड़का जो सच में जेडका को प्यार करने लगा, वो लड़का जिसने जेडका को वो इम्पोर्टेंस दी जो वो डिजर्व करती थी, जिसने जेडका को वो प्यार दिया जो वो डिजर्व करती थी। और जेडका धीरे धीरे अपने पहले प्यार को भूलने लगी और इस लड़के के प्यार में आ गई और इन दोनों ने शादी कर ली, घर बसा लिया, बच्चे हो गए, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। जब स्लोवेनिया में वॉर हुई और उसका हस्बैंड वॉर के लिए गया तो जेडका दिन रात उसके लिए प्रे करती थी और जेडका ने रियलाइज किया दैट शी इज मैडली इन लव विद दिस पर्सन। उसका प्यार इस बंदे के लिए अटूट था। उसने दिन रात अपने हस्बैंड के लिए जो प्रेयर की वो सब काम आई और एक दिन उसका हस्बैंड वापस आ गया। वॉर के बाद यहाँ पर एक अजीब सी स्टेट हो गई, स्लोवेनियंस को ब्लेम किया जाने लगा वॉर के लिए और उस टाइम जेडका ने अपनी कंट्री, अपने ब्रदर मैन को सपोर्ट किया। उसने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, टीवी पर आना शुरू किया, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए और अपने लोगों के लिए, अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए उसने लड़ाई की। उसकी जिंदगी ने एक अलग ही मीनिंग ले लिया जो जेडका ने कभी नहीं सोचा था। She was very very active those days. She was with her family, with her husband, with her children and with her country. She was doing everything she could. पर एक दिन उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। She was walking through the central square of Ljubljana, where there was a statue of famous Slovenian poet प्रिसीरन। और जब जेडका ने इस स्टेचू को देखा तो वो प्रिसीरन की लाइफ के बारे में सोचने लगी। प्रिसीरन एक लड़की को प्यार करता था, जूलियट, वो लड़की जो अपर मिडिल क्लास की थी और प्रिसीरन एक पुअर फैमिली को बिलोंग करता था और वो उस लड़की को नहीं पा सकता था। उसकी याद में उसने पोएम्स लिखना शुरू किया और वो एक लेजेंड बन गया। उसने इतनी सारी फेमस पोएम्स लिखी कि उसका नाम स्लोवेनिया में बहुत फेमस हो गया। उसका स्टेचू तक बनाया गया और अगर आप उस स्टेचू को देखेंगे ना तो उसका गेज एक फिक्स पॉइंट पर है और उस पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर एक लेडी का पोर्ट्रेट बना हुआ है, फेस बना हुआ है। वो घर है जहाँ पर जूलिया रहती थी। और जेडका सोचने लगी अगर इसने थोड़ा ट्राई किया होता तो शायद इसे जूलिया मिल जाती। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जेडका रिमेम्बर्ड हर लव फॉर दैट मैन। Zetka remembered everything she felt for that man, and she thought that if she would have tried a little harder, she might have got that man. She might be with him now, and it is also possible that he might be searching for Zetka now, that he might be in love for her, that he might be looking for her, but he didn't knew where she lived.
And then Zetka started searching for that man. She started searching for anything if she could get about him, but she could not know anything about him. Her heart started beating fast and she was very sad. She went back to her home and slept for 12 hours. When she got up, she thought, if I would have fought for my love the way I fought for my people, I might have got my love. He might be in love with me, but he couldn't fight. I would have tried hard at that time. Instead of becoming his mistress, I would have tried to become his wife. I would have done something. She tried to convince herself that she actually tried, that she actually fought, but she could not. She was very sad and she plunged into a deep sadness. Now, the love of her husband, her children, her beautiful home meant nothing to her. It turned out into a hell for her. She didn't like any of that. उसने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, स्टेट्स में पता नहीं कितने फोन कॉल्स लगाए, कितना पैसा वेस्ट किया, बट ही वॉज नॉट देयर इन द सेम सिटी एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड हिम इन द बिग कंट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. बहुत सारे फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया, ट्राई किया कि उसके बारे में कुछ तो पता चले, बट शी कुडंट फाइंड एनीथिंग अबाउट हिम. And here, her husband, he didn't do anything of that, and he didn't even suspected anything. And Zetka was furious because of that also. She wanted him to suspect anything. She wanted him to ask her what is going on, but he didn't. उसे ऐसे लगने लगा कि ये सारे फ्रेंड्स, ये सारे टेलीफोन ऑपरेटर्स, इन सबको उसके हस्बैंड ने ब्राइब किया है ताकि वो ज़ेटका को कुछ बता ना सके. उसे अपने हस्बैंड से भी नफरत होने लगी, अपने बच्चों से भी चिढ़ होने लगी. और एक दिन उसने अपना रूम लॉक किया और वो रूम में बंद हो गई. 2 दिन तक उसने दरवाजा नहीं खोला. उसका हस्बैंड जो एक्चुअली बहुत कंसर्न था, जो बहुत वरिड था, उसने डॉक्टर को बुलाया और ज़ेटका ने दरवाजा तब भी नहीं खोला. उसके बाद उसका बच्चा उसके रूम में गया तो ज़ेटका ने उसे बिना बात के थप्पड़ मारा और फिर वो पागलों की तरह रोने लगी, चिल्लाने लगी. उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और बहुत अजीब से बिहेव करने लगी. तब उसके बाद 2 लोग आए और उन्होंने ज़ेटका को एक इंजेक्शन दिया और जब ज़ेटका ने आँख खोली तो वो विलीट में थी. डॉक्टर ने ज़ेटका के हस्बैंड को बताया कि उसे डिप्रेशन हुआ है. डिप्रेशन किसी भी कारण से हो सकता है और कई बार ये हमारी बॉडी में एक केमिकल सब्सटेंस जिसका नाम है सेरोटोनिन, उसकी कमी से भी होता है. अगर वो केमिकल हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमें डिप्रेशन होता है और हमें छोटी छोटी चीजों से प्रॉब्लम होने लगती है. इधर ज़ेटका का ट्रीटमेंट खत्म हुआ और उसका असर खत्म हुआ. उसके हाथ पर नर्स ने एक ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा दिया. अब ज़ेटका को बेटर फील हो रहा था. ज़ेटका को मन किया कि वो वेरोनिका को सब कुछ बताए कि उसने इस जर्नी में, इस ट्रीटमेंट के दौरान क्या फील किया. बट नहीं, कोई फायदा नहीं. किसी के बताने से कोई नहीं समझता, सब अपने एक्सपीरियंस से समझते हैं. ज़ेटका ने आंखें खोली, वेरोनिका की तरफ देखा तो वेरोनिका बड़ी डरी हुई थी. ज़ेटका, हाय वेरोनिका. वेरोनिका, are you all right? Zetka, yeah, actually I managed to come out of this dangerous treatment. But this treatment will not be repeated again. Veronica, how do you know? Zetka, you will see on your own. याद है जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझसे क्या पूछा था? Veronica, yes. What does actually mean to be a mad person? Zetka, yeah. Today I will not tell you any story. I will tell you what actually mad means. A person who is actually incapable to communicate his or her ideas, his or her feelings is actually mad. कभी जैसे कि हम किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं, जहाँ पर हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, पर क्योंकि हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो हम अपनी फीलिंग्स किसी को समझा नहीं सकते. वो इंसान एक्चुअली पागल कहलाता है. उनके लिए तो हम बिल्कुल पागल हैं, क्योंकि हम जो कहना चाहते हैं वो समझ नहीं सकते या फिर हम समझा नहीं सकते. और हम में से हर एक इंसान
इस फीलिंग से गुजरता ही है। सो इन अ वे वी ऑल आर मैड। तो चलिए, जेडका मैडम के हिसाब से हम सब पागल हैं, हम सब मैड हैं, हम सबको मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, या फिर ये दुनिया ही एक मेंटल हॉस्पिटल है जो सारे पागलों से भरी है और किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाने की क्या जरूरत है। तो भाई, जब हम पागल ही हैं तो पागलों वाली हरकतें करने में क्या जाता है, मस्ती करने में क्या जाता है, कुछ क्रेजी करने में क्या जाता है। एंजॉय करो ना यार, क्या सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा, उफ, इसको कहीं बुरा तो नहीं लगेगा, ओह माय गॉड, कहीं मेरी ये हरकत कुछ स्टूपिड तो नहीं लग रही। छोड़ो ना यार, जस्ट हैव फन। आज आसमान बहुत साफ है, तारे चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, और आज न्यू मून का दिन है। दो पोएट्स फुल मून को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी सुंदरता की बातें करते हैं, उसके ऊपर बड़ी बड़ी पोएम्स लिखते हैं। बट वेरोनिका को न्यू मून पसंद है, क्योंकि यहाँ पर ग्रो करने का, आगे बढ़ने का, एक्सपैंड होने का स्कोप है। ये चांद कल और बड़ा होगा, परसों और बड़ा, और ये देखना वेरोनिका को बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ नीचे आने का, झुकने का कोई स्कोप नहीं है। वेरोनिका का आज सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है, पियानो बजाने का मन कर रहा है, सनाटा जो उसने अपने स्कूल में सीखा था न्यू मून वाले दिन बजाने के लिए, वो बजाने का मन कर रहा है। पर यहाँ तो सब लोग सो रहे हैं। क्या इस टाइम, रात के इस आवर में मुझे यहाँ पर पियानो बजाने देंगी? वो नर्स जो सामने हमेशा किताब ही पढ़ती रहती है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखने की कोशिश करती है, क्या वो मुझे अभी पियानो बजाने देगी? शायद नहीं। वो जेडका के बेड पर गई, देखने के लिए कि इज शी अवेक, बट नो, शी वाज साउंड asleep, maybe because of the effect of the treatment she went through. The sister called, "Why don't you go and sleep?" Veronica, "I don't want to sleep. I'm not a little kid. Don't treat me like a little girl. I'm a grown-up girl. I know everything. I'm not afraid of anything. I have nothing to lose. I'm dying in few days. I have just seen the moon and I want to celebrate. I want to play piano. Can I?" The nurse looked at her, surprised by her reaction. "Veronica, are you afraid of me?" Nurse, "Why don't you go and take a walk? Till then, I'll finish my book." Veronica knew that she is pretending to read a book. Instead, she was keeping an eye on every movement, everything going on in here. Veronica was trembling. "Sister, what happened to you?" Veronica, "Maybe because of my weak heart. Maybe. But I want to go out." Sister, Go and take a walk." Veronica, "Keys?" Sister, "The door is open. What do you think, that I will lock myself with loads of mental patients in here?" "No, we don't." Veronica was surprised to know that. "Don't you?" "No, actually we give sedatives to all the mental patients here, so there's no need of locking the doors. You can go out." Veronica, But I want to play piano." Sister, "You can. वैसे भी पियानो का रूम अलग है और यहाँ पर सब लोग सेडेटिव्स लेकर सो रहे हैं, मुझे नहीं लगता इन लोगों को फर्क पड़ेगा। तुम जाओ, जो करना चाहती हो वो कर लो." और ये सुनने के बाद जैसे वेरोनिका को कुछ अलग सा फील हुआ, वो बैठ गई, उसने अपना सर उस सिस्टर के लैप में रख दिया, एंड शी स्टार्टेड sobbing. She started crying like anything. नर्स ने अपनी बुक साइड में रख दी और वो वेरोनिका के बालों में हाथ फेरने लगी. For another half an hour, these two stay like that, one sobbing and the other consoling, though neither of them knew for what or why. Finally, Veronica stopped crying. The nurse took her by the arm
and helped her out of door and said, I have a daughter of your age. When you came here with needles and drips all around, I was thinking about why a girl of your age feel like dying? Why a girl of your age doesn't want to live? और फिर यहाँ पर रूमर्स थे about the letter you wrote to the magazine. मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई इसलिए अपनी जान ले सकता है कि उसकी कंट्री को कोई नहीं जानता। और फिर तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम्हारा हार्ट वीक हो गया है। मुझे बहुत तकलीफ हुई। क्यों कुछ लोग नेचुरल चीजों के अगेंस्ट जाते हैं? क्यों नहीं अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करते? Yeah, that is why I was crying, because when I was trying to kill myself, I hated Veronica. I didn't knew that there is another Veronica inside me, to whom I can love, to whom I can adore. Nurse, what makes a person hate themselves? Veronica, cowardness, internal fear of being wrong, or not doing what others expect us to? थोड़ी देर पहले मैं बहुत खुश थी, मैं एंजॉय करना चाहती थी, और फिर मुझे याद आया कि आई एम इनटू अ डेथ सेंटेंस। मैं थोड़े दिनों में मरने वाली हूँ। और जब मुझे याद आया तो मैं डर गई, मैं घबरा गई। नर्स ने दरवाजा खोला और वेरोनिका उस रूम से बाहर चली गई। वेरोनिका पियानो रूम की तरफ जाने लगी और सोचने लगी कि ये नर्स क्या सोच रही होगी। क्या मैं पागल हूँ? क्या ये जो मैंने अभी किया उससे मेरे ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट होगा? नहीं, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मैं वो वेरोनिका हूँ जो एक बार जो डिसीजन ले ले उसे कभी वापस नहीं लेती। मैं वो वेरोनिका हूँ जो कभी भी किसी चीज के लिए लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं। मैं वो वेरोनिका हूँ जिसने ना कभी किसी को हर्ट किया है और ना करेगी। मैं वो वेरोनिका हूँ जो चाहे पढ़ाई में अच्छी ना हो, स्पोर्ट्स में कुछ भी ना कर पाए, पर कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देती। मैं वो वेरोनिका हूँ जो लोगों के साथ बातें करने की बजाय, मस्ती करने की बजाय रूम में पीछे बैठकर बुक पढ़ना पसंद करती है। मैं वो वेरोनिका हूँ जो अगर कोई मेरे साथ लड़ाई करे तो उसे सॉरी बोलकर निकल जाती हूँ। मैं वो वेरोनिका हूँ जो कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं देती, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को मार देती हूँ। मैं वो वेरोनिका हूँ जो हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जीती आई है, जिसके लिए अपनी खुशियाँ ना कभी मैटर की ना करेंगी। मैं वो वेरोनिका हूँ जिसने आज तक कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, किसी को तकलीफ नहीं दी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर नहीं गई। मैं वो वेरोनिका हूँ जो जैसे बाकी लोग चाहते हैं वैसे ही जीती हूँ। She may have impressed a lot of people with her strength and determination, but where had it left her? In a void, utterly alone, in Villette, an anteroom of death? अब वेरोनिका वो महसूस कर रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। Hatred towards everything. Hatred for her mom, who used to do everything in order to make others happy. Why couldn't she do anything for herself? She started to hate her, though she knew that her mom loved her like anything. But still, she hate her. She hate her for being so good, so nice. She started hating her father, who used to enjoy life with other women, who used to be very good, very friendly, very enjoyable with everyone except for her mother. उसे हर एक चीज से नफरत हो रही थी, अपने आप से, अपने सामने पड़ी कुर्सी से, टेबल से, इस हॉस्पिटल की दीवारों से। और सबसे ज्यादा उसे नफरत अपने आप से हो रही थी, अपने इस डिसीजन से हो रही थी। क्यों नहीं वो अपने अंदर की और 100 वेरोनिका को देख पाई जो जीना चाहती थी, जो इंटरेस्टिंग थी, मैड थी, बोल्ड थी, क्यूरियस थी और ब्रेव थी। और फिर उसने इसी हेट्रेड की फीलिंग के साथ पियानो का लिड खोला और उसकी कीज पर जोर से मारा और वो जोर से आवाज आई,
मैं मैड हूँ, मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई एम अलाउड टू डू एनीथिंग। एंड देन शी डिड दैट अगेन एंड अगेन। और फिर धीरे धीरे उसकी हेट्रेड बाहर निकलने लगी, वो काम फीलने लगी और उसकी उंगलियां उसके बाद एक प्यारी सी ट्यून बजाने लगी। अपने आप उसके अंदर से धुनें निकलने लगी, प्यार की धुनें, तारों के लिए, चांद के लिए, आसमान के लिए, पेड़ों के लिए, नदियों के लिए, वो सारी धुनें उसने बजाना शुरू कर दिया। और जब वो ये पियानो बजा रही थी तो उसके अंदर की सारी हेट्रेड, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई और वो रिलैक्स फील करने लगी। तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक और पागल, एडवर्ड, जो कि एक स्किज़ोफ्रेनिक है, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, वो ये धुन सुन रहा था। Veronica was not frightened to see him. Instead, she smiled at him, and to her surprise, he smiled back. जैसे कि इस इंसान पर भी म्यूजिक ने अपना असर किया है। म्यूजिक कैन डू मिरेकल्स, और वो किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। चाहे आपको दुनिया की कोई भाषा समझ आए ना आए, पर प्यार की भाषा, म्यूजिक की भाषा, ये हर इंसान को समझ में आती है, चाहे वो कितना ही पागल हो। तो अब इस कहानी में एक नया कैरेक्टर आ गया है, एडवर्ड, जो कि एक स्किज़ोफ्रेनिक है। स्किज़ोफ्रेनिक क्या होता है? ये तो बहुत ही सीवियर मैडनेस है। वो इंसान जो इतने डिप्रेशन में हो कि वो बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता। ऐसी ही हालत थी इस एडवर्ड की, कि किसी से बात नहीं करता था, चुप रहता था, अपने आप में रहता था, दवाइयों पर रहता था, इससे शॉक ट्रीटमेंट दिए जाते थे। और ये एडवर्ड भी म्यूजिक सुनकर एकदम शांति से खड़ा था, जैसे कि उसकी इनर सोल को पीस मिल रहा हो। खैर, अब आपको मुझे यहाँ से इजाजत देनी ही होगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कीजिए, अब मैं और नहीं रुक पाऊंगी, नहीं तो ये रेडियो वाले मुझे धक्के मार के निकाल देंगे। तो अब आपको इस कहानी को आगे सुनने के लिए अगले हफ्ते तक करना होगा इंतजार, और तब तक आप मुझे देते रहिए प्यारे फीडबैक और मेरे इस शो को अप्रिशिएट करते रहिए। और साथ हमारा YouTube चैनल, जो कि है RADIOUDAAN, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारे शोज को लाइक करना ना भूलिए, उन पर कमेंट करना ना भूलिए। और ये कहानी अगर आज आपने मिस की है तो कल आप इसे 3 बजे भी सुन सकते हैं। और अदरवाइज YouTube जिंदाबाद, YouTube तो है ही। आप YouTube पर टाइप कीजिए रेडियो उड़ान बुक वर्ड वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई, और आप इस स्टोरी को वहाँ पर सुन सकते हैं। तो चलिए अब हम इस कहानी को करेंगे अगले हफ्ते कंटिन्यू। Till then, you stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing, and keep listening to Radio Rana Fighter 5. Bye bye.